Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABES Engineering College Ghaziabad as an assistant professor. Today I will deliver on lecture Discrete Mathematics and Structure Theory of Logic, and today I will cover methods of solving recurrence relations. As per my previous lecture, in my previous lecture I will cover what is recurrence relation and homogeneous relation, non-homogeneous relation, what are the characteristics of the recurrence relation, and 4 cases when solving the recurrence relation. 4 type of cases. First one is that if characteristics of the roots is similar and if distinguished, and one is imaginary and imaginary plus similar, right. Then we will discuss today method of solving recurrence relation. As I previous lecture I will continue today. एंड होमोजीनियस रिकरेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट पर्टिकुलर सोल्यूशन. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजीनियस रिलेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड पे आर एन की वैल्यू 0 होती है. व्हेन वी फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ होमोजीनियस लीनियर टाइप, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इनिशियल कंडीशन इन द होमोजीनियस सोल्यूशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन 2ar minus 5ar minus 1 plus 2ar minus 2 is equal to 0. Then find the particular solution is what? Suppose that a0 is equal to 0 and a1 is equal to 1. The solution is what? The characteristics equation is that, solve it to s minus 1 and s minus 2, and what is the solution? S is equal to 1 by 2 and 2. तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, दोनों रूट्स क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है, राइट. In that case, as I told you in previous lecture, that is the solution is format is what? ARH, that is the C1, that is the constant value of C1, and the 1 by 2, that is the root value, and again C2 2r ki power n, sorry 2 ki power r. 2 is what? Again root number 1 and root number 2, right. And the putting the r is equal to 0 and r is equal to 1 in the equation 1, then what will we get? How to find it? Because a0 is equal to 0 and a1 is equal to 1. That is why find the a0, that is equation number A, and a1 की value again C1 and C2 is equation number 2. Then after the solving the both equation, we will find the what? Value of the C1 and C2, right. After putting the value of C1 and C2, then find the particular solution, that is called in particular solution of that equation, right. Again इसको आप समझिए क्या है स्टेप्स. सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जनरल टर्म निकाला, पहले इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, राइट. आपके कितने रूट्स आए, 1 by 2 and 2, राइट. 2 डिस्टिंग्विश रूट आए, फिर आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया. आफ्टर दैट by the giving the precondition a0 is equal to 0 and a1 is equal to 1, putting these values in the this, find the two equation number A and equation number B, and solving the both equations, find the value of C1 and C2. After putting the C1 and C2 value in this, find the particular solution, right. It is very easy. Okay. Okay, I will take the again it is a different example, that is what, for the similar value, right. For the what is the equation, AR 4AR minus 2 and 4AR minus 2 is equal to 0. Again it is a homogeneous, find the particular solution, PS निकालना है मुझे, right. Again हमें preconditions क्या दी हुई हैं, A0 is equal to 0 and A1 is equal to 6. माइनर सा चेंज है, बहुत लिटिल बिट चेंज है क्या सोल्यूशन में. आप देखिए सबसे पहले क्या जनरल इक्वेशन मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट. तो हमें क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना पता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 and 2, दो सिमिलर मिली. अगेन मैंने इसकी आपको बता रखा है कैसे होगा, इस फॉर्मेट में हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लिया. व्हाट, अगेन
अभी मैं जो प्री कंडीशंस दी हुई है इसका यूज करके हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 या ए एंड बी जो भी आप बोल दें, पुटिंग द r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। अगर हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे देन एंड r इज इक्वल टू 1 रखेंगे देन आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 2। इन c1 और c2 की वैल्यू हम अगर पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दें देन क्या होगा, हमें ps मिल जाएगा। दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन व्हेन रूट्स आर सिमिलर। इन प्रीवियस एग्जांपल we find the solution of homogeneous equation when roots are different, that right? And what is that? Example number 3, इसमें भी आप देखें, इसमें क्या है, find the roots of similar 1 by 3 1 by 3, again put the value of s and finding the equation number 1, after that our precondition is what, a0 is equal to 0, a1 is equal to 2, putting both the values in this, after that finding the two equations and calculate the value of c1 and c2. So c2 is what, 6 and c1 is what, 0. After that putting the value of given equation, what is that, that is our particular solution, right? And I will take one example. What is that? Suppose that I will take what, one equation, that is what, that is the an minus 2an, an minus 2a and minus 1, right, plus an minus 2, an minus 2 is equal to 0, right? And what is the preconditions, a0 is equal to 2 and a1 is equal to 5. This is my question. Then put the value of, put an is equal to r की power n, an is equal to r की power n. Then what we will get, the equation is converted is what, r की power n, r की power n minus 2 r की power n minus 2, right, r की power n minus 1 and plus r की power n minus 2 is equal to 0, 0 है ऑटोमेटिकली होमोजीनियस है। अगेन वी विल डिवाइड बाई r की पावर n माइनस 2, अगर इस इक्वेशन को किसे डिवाइड करें, डिवाइड बाई r की पावर n माइनस 2, देन व्हाट वी विल गेट, r स्क्वायर माइनस 2 r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें एक नॉर्मल फॉर्मेट मिल गया जिसको आप हमेशा सॉल्व करते आ रहे हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट टेक द कॉमन, और तो r माइनस 1 कॉमन ले लें तो r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट r माइनस 1 एंड r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r के रूट्स क्या आ गए, 1,1, सॉरी 1,1, 2 रूट्स आए हमारे क्या, 1,1, सॉरी 1,1। अब इसको अपने वैल्यू में अगर पुट करें, राइट, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखें, तो हमारा जो an आएगा अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, an हमारा c1 प्लस c2 एन, राइट, इंटू 1 की पावर n। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों रूट्स की वैल्यू 1 है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, तब a0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, जो कि हमें पहले से पता है, a0 में प्री कंडीशन दी हुई है 2, तो व्हाट, राइट, तो c1 प्लस c2 इंटू 0 एंड 1 की पावर 0। तो a2 की वैल्यू, a0 की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू 0 हो ही गई, ये 1 ही है, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1।
तो हमने C2 की वैल्यू निकाल, C1 की वैल्यू निकाल ली, सॉरी। देन अगेन व्हाट इज दैट, A1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू 1 एंड 1 की पावर n, राइट। तो अब देखिए C1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A1 की वैल्यू हमें पता है 5, राइट। तो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस C2, 1 की पावर n कुछ भी रहे तो 1 ही रहेगा। आफ्टर दैट तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, C2 इज इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो अगेन C2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमें C1 C2 की वैल्यू मिल गई, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें C1 और C2 की वैल्यू मिल गई है तो हमने क्या, अब इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू एन एंड 1 की पावर n, राइट। तो 1 की पावर n तो कुछ होता नहीं, तो हमारा PS क्या आ गया, an इज इक्वल टू 2 प्लस 3n, राइट। दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इट्स वेरी क्लियर, राइट। अगेन फॉर द नॉन होमोजीनियस, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये क्या है, राइट। इफ, पहली बात तो नॉन होमोजीनियस क्या है, इफ आर एन इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। इन द डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन इज व्हाट, there are the two different methods finding the particular solution of the non-homogeneous linear differential equation. These are the follows. What is that? Understand the coefficients method and understand the operator method. So what is the understand the coefficient methods? This method is used by the particular solution of the non-homogeneous linear equation whose right hand side the Rn does coefficient in terms of special form. ये मतलब Rn की वैल्यू does not equal to 0 होनी चाहिए। In this method, firstly we assume that general form of the particular solution. हम assume करेंगे क्या, general form of the particular solution according to the type of Rn. जो भी Rn हमारा होगा उसके according में एक general solution let करेंगे, assume करेंगे, and some unknown constant coefficient C1 and C2 जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसको हम calculate करेंगे, which have to determine, इसको हम calculate करेंगे, and then according to the differential equation we will determine the exact solution, that is the PS value, right. The general form of the particular solution to be assumed for the special form of the R, right, Rn, sorry, to find the exact solution in the table. Again I will show you one example. Again I told you as per previous example क्या लिया था हमने, an, उसके पहले मैं आपको कुछ, अगर हमें कैरेक्टर रूट्स, राइट, कैरेक्टर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मेथड लगाना है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्या करना है, इफ C0 an प्लस C1 an माइनस 1 एंड सो ऑन, राइट, क्या होगा, ck राइट n माइनस k इज इक्वल टू fn, कुछ भी फंक्शन हो सकता है राइट हैंड पे नॉन होमोजेनियस के लिए, राइट। तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। आफ्टर दैट इन किस फॉर्म में रहेगा, an राइट इज इक्वल टू an होमोजीनियस प्लस an पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि नॉन होमोजीनियस के लिए रहेगा, एंड इसमें 3 केसेस बनेंगे, राइट। क्या है, इफ फाइंडिंग द p, अगर हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाई पुटिंग व्हाट, an इज इक्वल टू p, an इज इक्वल टू p इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या होगी, जो आपको गिवन होगी, राइट, वही बताता हूं। एंड व्हाट इज दैट 3, इफ फेल्स, अगर वो हमारी कंडीशन फेल हो जाती है देन क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन फेल होती है देन क्या होगा, पुट, सेकेंड टाइम हम क्या ट्राई करेंगे, an की वैल्यू क्या रखेंगे, an इज इक्वल टू np, राइट।
अगर ये भी फेल हो जाता है देन इफ फेल अगेन देन क्या होगा, पुट व्हाट, an इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी, an इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी एंड सो ऑन, हम इसको रखते जाएंगे एन क्यूब पी जब तक कि सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो जाता, राइट। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दिया था, क्या दिया था, an माइनस टू ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन, राइट, एंड प्लस ए एन माइनस टू। अब यहां पे नॉन होमोजीनियस है तो इक्वल टू एफ एन, सॉरी इज इक्वल टू एफ एन रहेगा, राइट, या वन रख लेते हैं, इक्वल टू वन कर देते हैं इसको, ठीक, इज इक्वल टू वन। अगर इसमें है, अब देखिए इक्वल टू वन है मतलब कि नॉन होमोजीनियस हो गया, राइट। अब इसके रूट्स आपने इसको जो कन्वर्ट किया था, आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इफ पुट आर इज इक्वल टू वन, तो इसमें फॉर्मेट क्या आया था हमारा, आर की पावर एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस वन एन प्लस आर की पावर एन माइनस टू एन इज इक्वल टू वन। अब वन तो है, अब इसको हम डिवाइड बाई आर की पावर एन माइनस जब टू करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। इसको होमोजेनियस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं जीरो रख के, तो इसमें वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू आई थी ना 1,1, अभी मैंने आपको पहले बताया ये वाला सेम, देखिए सेम इक्वेशन है, इसमें क्या आई थी, आर की वैल्यू 1,1 आई हुई है ना, राइट, यहां से, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बिकॉज ऑफ कि यहां पे नॉन होमोजीनियस है, इसमें रख के देखते हैं क्या, ए एन इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 एन स्क्वायर एन एन 1 की पावर एन, राइट। तो इसको हमने क्या किया, ठीक है, इसमें हमने पुट की वैल्यू क्या, अब इसमें हम पी एन इज इक्वल टू, इसमें क्या देखते हैं पुट करके, ए एन इज इक्वल टू पी, राइट। तो ए एन इज इक्वल टू पी करके देखते हैं तो क्या होगा, पी माइनस टू पी प्लस पी इज इक्वल टू वन। तो जीरो इज इक्वल टू वन तो हो नहीं सकता, दैट इज फेल्स, राइट। अब इसमें देखिए आप वैल्यू पुट कर देखेंगे तो आपको ये आएगा, ये फेल हो जाएगा, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, जीरो इज इक्वल टू वन नहीं हो सकता। तो अगेन हम सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, पुट ए एन इज इक्वल टू एन पी, राइट। तो अगेन हम एन पी पुट करके देखते हैं, राइट। तो एन पी पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, एन पी माइनस टू एन पी एंड प्लस एन माइनस टू पी इज इक्वल टू वन। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा और इधर वन आ जाएगा, जो कि अगेन इम्पॉसिबल है। तो ये भी हमारी कंडीशन फेल हो गई। तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट। अब देखिए जो हमारी दोनों कंडीशंस फेल हो गई, ये भी फेल हुई, ये भी फेल हुई, तो आगे क्या करें, एन स्क्वायर रखना है, एन स्क्वायर पी रख के देखेंगे। तो जब आप एन स्क्वायर पी रख के देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, एन स्क्वायर पी माइनस टू एन माइनस वन, एन माइनस वन, राइट, स्क्वायर पी माइनस वन, अगेन एन माइनस टू का स्क्वायर पी माइनस वन, एन माइनस टू का स्क्वायर पी इज इक्वल टू वन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू पी इज इक्वल टू वन, देन p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू वन बाई टू। तो जो हमारा जनरल टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो ए एन इज इक्वल टू वॉट, ए एन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एन इंटू वन की पावर एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर, राइट। इस फॉर्मेट में आ जाएगा कुछ। अब इसमें अगर हमको जो वैल्यूज दी हुई हैं, पहले क्या दिया हुआ था,
A0 इज इक्वल टू 2 एंड A1 इज इक्वल टू 5, राइट। इसमें हम देख लें, ओके थोड़ा मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, राइट। उसी के कंटिन्यू करते हुए अब इसमें जो A1 और A0 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू 5 है, तो इसमें हम जो जनरल टर्म आया इसको यहां नोट कर लेते हैं एक बार। क्या आया हमारा जनरल टर्म, देख लेते हैं एक बार, राइट। तो हमारा क्या आया था जनरल टर्म, an इज इक्वल टू C1 प्लस C2n 1 की पावर n इंटू 1 की पावर n प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर, राइट। अब इसमें हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, A0 इज इक्वल टू 2, हमें जो प्री डिफाइंड कंडीशन है A0 इज इक्वल टू 2 एंड A1 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब n0 इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 0 अगर रखें इन इक्वेशन 1, देन व्हाट वी विल गेट, A0 इज इक्वल टू C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगेन पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट, इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा मुझे, अगेन क्या मिलेगा मुझे, A1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो A1 की वैल्यू 5 C1 प्लस C2 इंटू 1 एंड 1 की पावर 1 प्लस 1/2, राइट। देन इसको सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर A1 की वैल्यू 5 रख देंगे आप तो C2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आएगी, 5/2, राइट। तो C1 की वैल्यू आ गई 2, C1 की वैल्यू आई क्या 2, C2 की वैल्यू क्या आई 5/2, राइट। देन व्हाट वी विल गेट, तो जो हमें जनरल टर्म मिलेगा ना पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस वैल्यू ऑफ 5/2, क्योंकि C1 की वैल्यू तो 1 हो गई, राइट। C2 की वैल्यू 5/2 एन प्लस 1 की पावर n प्लस क्या होगा 1/2 n स्क्वायर, 1/2 n स्क्वायर, राइट। दैट इज व्हाट, दैट इज योर सॉल्यूशन। तो क्या समझा आपने, अभी देखिए पहले आपने ये सॉल्व किया होमोजीनियस को, नॉन होमोजीनियस में आपने क्या दिया, मेथड अप्लाई किए। पहले हमें क्या करना है, जो हमारे टर्म दिया है उसके इक्वल टू fn करना है, fn जो कि इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब उस जनरल सॉल्यूशन में an इज इक्वल टू ANH प्लस होमोजीनियस प्लस p की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आफ्टर दैट चेक करना है an इज इक्वल टू p रख के, अगर ये अप्लाई होता है तो ठीक, अदरवाइज फेल्स होता है देन पुट द an इज इक्वल टू np, अगर ये भी फेल होता है देन पुट इज इक्वल टू n स्क्वायर p एंड सो ऑन n क्यूब p। कब तक, जब तक कि सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो जाए। हमें हमारी जो इक्वेशन है उसमें कब मिल गया सोल्यूशन, दो कंडीशंस फेल हुई, कौन कौन सी, इफ an इज इक्वल टू p, वो भी फेल हुआ क्योंकि 0 इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। अगेन हमने क्या रखा, n स्क्वायर p, सॉरी np रखा, पहले हमने p रखा था, np रखा तो भी हमारे सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन अगेन हमने क्या किया, n स्क्वायर p रखा, देन हमें फाइंडिंग सोल्यूशन, राइट। तो हमने उस सोल्यूशन को C1 एंड C2 की वैल्यू निकाली जैसे हम पहले निकालते थे, राइट। तो C1 की वैल्यू आई 2, C2 की वैल्यू आई 5/2, इसको हमने पुट कर दिया, दैट इज फाइंड द सोल्यूशन, राइट। ऐसा ही मेथड सॉल्विंग रिलेशन कुछ है तो फॉर्म ऑफ Rn के होगा, Zi कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, इफ a होगा, z की पावर r होगा, ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं। अगर पॉलिनोमियल डिग्री n है देन इस फॉर्मेट में सोल्यूशन मिलेगा। अगर इफ z की पावर r है, pr इज पॉलिनोमियल, डिग्री r है, देन z इज अ कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिग्री दिस, अब यहाँ पे क्या है, z की पावर r है। अब इसमें देखें वेयर इक्वेशन 1 z इज द सम कांस्टेंट, z की पावर r है बट z क्या है, कांस्टेंट है। नाउ पुटिंग द सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 वी विल गेट व्हाट इज दैट, राइट, दैट इज इक्वेशन 2, दैट इज सोल्यूशन ऑफ द, इसमें पुट कर देंगे हम लेफ्ट साइड में जो भी सोल्यूशन आया हमारा उसको पुट करेंगे।
इक्वेटिंग द इक्वेशन 2 विथ RHS, RHS हमारा क्या है, z की पावर r, आफ्टर दैट विल गेट दिस, तो ये हमें सोल्यूशन मिला, z does not equal to 1 और does not equal to 2, in that case finding the value of a, right. Therefore the particular solution हमारा क्या आया, z की पावर r अपॉन z minus 1 and z minus 2, right. Okay, and again same in this equation, z की power 5, then finding the solution, equation number 2 6a 5 की power r and equating the both the LHS and RHS, finding the a की value 1/6, जैसा आपको पहले बताया सॉल्व कर लेंगे आप, and solution is what 1/6 5 की power r. ऐसे ही सेम एग्जांपल ये है, r इंटू 2 की पावर r है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें क्या है सोल्यूशन हमने एज्यूम किया, क्या जनरल फंक्शन में a0 a1 प्लस r किया एंड 2 की पावर r, इन दैट केस नाउ पुटिंग द सोल्यूशन ऑफ द LHS, हमने क्या किया 2 की पावर r, कोफिशिएंट a01 a1 एंड सो ऑन, राइट. अब इसमें देखिए 4 इंटू 2, राइट, अगेन फाइंडिंग द इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग दिस, राइट, एंड equating the equation number 2 with the RHS, तो finding the value of a1, right, 1/7 and a0 is minus 10/49, आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा आपको, and find the solution putting the value of a1 and a2 in the equation and finding the solution of this, right. And what is the operator method, finding the operator of equation fn function that given by the increasing value of the function m, किस तरह से increase होती है value, putting the x plus h equation function every that there is x, hence h is the incremental quantity of equation e and fx plus h, right. fx को हमने किस फॉर्म में रख दिया, x plus h के, and operated by the therefore the symbolic representation of the shift operator. And definition of operator is what, the operator delta is an operator of two steps. Firstly, x is the function of increment by the constant and the terms of subtract the value of this, fx is equal to fx plus h minus fx, right. And what is the example, देख लें, x plus delta क्या किया हमने ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को हमने क्या किया fx 2 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है fx plus h and efx, राइट, इसमें हम क्या किया, अप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट equivalent the operator e minus 1 on function of x, and that is the what, approximately 1 plus operator. And few one more theorem is what, proof is f plus x plus n into h, right. इंक्रीमेंटल हम लगा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं n टाइम्स हम क्या कर रहे हैं fx को, आफ्टर दैट n e की पावर n minus 1 e f x इक्वेशन ऑफ x, एंड आफ्टर दैट n minus 1 f x x, इसको जब हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 2h हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, एंड x प्लस h, एंड आफ्टर दैट अब स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो ये आएगा, आफ्टर दैट एंड थ्योरम इज व्हाट, e coefficient of fx, and we know that this is this, आफ्टर दैट व्हाट, एज आई प्रीवियसली आई टोल्ड यू, एफ एक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस एच के फॉर्म में, राइट. इसको हमें प्रूफ करना है, देयरफॉर द इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर ई ऑन द कांस्टेंट, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इटसेल्फ, राइट. देन विल बी operator methods will be defined in the solution. What is that, coefficient c0 c1 and so on cn, that is the Rn, that is non homogeneous as I told you, है ना. अब इसमें देखिए आपने Rn, आपने p की वैल्यू रख दी यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, एंड आफ्टर दैट p e y n इज इक्वल टू Rn, तो व्हाट इज द yn, Rn अपॉन व्हाट इज दैट, yn इज इक्वल टू Rn अपॉन p e, right, that is equation 2. And as I told you previously, applied on these 2ar plus 1 minus ar is equal to 12, then put the above equation writing as like this,
and particular solution of this, what is that? AR is equal to 1 by 2 E minus 1 into 12 and putting the E is equal to 0. अगर E की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें, देन सोल्यूशन क्या आएगा? AR is equal to 12. इट्स वेरी सिंपल. अगेन एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज दैट? अगर फाइंडिंग द इक्वेशन एंड इसको हाउ टू रिप्रेजेंट इट, E स्क्वायर माइनस 4E प्लस 4 एंड E माइनस 2 का होल स्क्वायर. अगेन इन फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दैट, E माइनस 2 का फाइनल अगर रिक्वायर करेंगे तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही लेंगे. इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट. तो आपने क्या देखा कि जितने जो थ्योरम्स थी आपकी, उसमें आपने जो भी प्रूफ किया है, क्या निकाला? वाई एन की वैल्यू क्या आई? आर एन अपॉन पी ई. और पी ई कैसे निकाला आपने? इसको सॉल्व करके. आफ्टर दैट कैसे अप्लाई किया आपने? अगर आपको इक्वेशन दी है, पर्टिकुलर इक्वेशन क्या? 2AR प्लस 1 माइनस AR इज इक्वल टू 12. तो इसको आपने इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? 2E माइनस 1 AR कॉमन लिया आपने ना यहाँ पे, तो 2E माइनस 1 एन इज इक्वल टू 12 तो है ही है. इसका सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, वेरी सिंपल, राइट. इसकी सोल्यूशन क्या आएगा? 1 बाई 2E माइनस 1 इंटू आर. एंड E की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो AR की वैल्यू निकल आएगी. और AR की वैल्यू निकल आएगी तो क्या होगा? अगर AR की वैल्यू यहाँ पे E वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा? AR की वैल्यू निकल आएगी ना, वेरी सिंपल है. तो AR की वैल्यू अगर 12 आ गई तो यही हमें फाइंड आउट करना था. अगेन हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? दिस. तो इसमें आपने क्या किया? इस एबव इक्वेशन रिटन एज व्हाट? आपने अगेन AR कॉमन लिया है, तो E स्क्वायर 4E प्लस 4, राइट. तो क्या हुआ? 2 की पावर R. अब इसमें क्या किया? आपको अगेन वैल्यू निकालनी है, तो आपने अगेन यहाँ पे पुट कर दिया P इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दिया आपने, E माइनस 1 E माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे. तो वी फाइंडिंग द सोल्यूशन. तो आपने क्या क्या देखा इसमें पूरे लेक्चर में? हाउ टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, राइट, एंड डिफरेंट एंड सिमिलर रूट्स, एंड हाउ टू अप्लाई द मेथड्स, राइट. आपने ये मेथड देखे तीनों कि अगर फेल हो जाते हैं तो एन स्क्वायर एन पी रखना है, एन पी रखना है, एन स्क्वायर पी रखना है, एंड सो ऑन एंड क्यूब, तब तक ये फेल होता जाता है, राइट. एंड फाइंड द आफ्टर फाइंड द जनरल टर्म एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड फ्यू फॉर्मेट्स ऑफ दैट. अगर इफ z इज कांस्टेंट एंड पॉलिनोमियल में डिग्री n हो एंड z इज कांस्टेंट हो, तो ये आपने देखा सारे, राइट. एंड आपने लास्ट में क्या देखा कि अगर रिकरेंस सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, राइट, तो x की वैल्यू x प्लस h कर देते हैं. आफ्टर दैट आपने yn निकाला, yn की वैल्यू क्या है? आर एन अपॉन पी ई. इसको आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे. ओके, वी विल नीड नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.